Hey guys, welcome back to the channel. Let's discuss the सीमेंट सेक्टर के जो जितने भी रिजल्ट्स आ चुके हैं यहाँ पे वो डिस्कस कर लेते हैं. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विद द नंबर वन कंपनी as per the market cap, as well as being a bigger company. It is growing at a good growth. So this is Ultratech Cement. Now almost they did around 19,000 crores of revenue in Q2 FY26. Now, generally, the Q2 is softer for all these companies. But what has happened really in these companies, and you will see this trend in all the companies, that their EBITDA margin has been improved almost by 4 to 5%, right? In every company, you will see that for Ultratech, for Ambuja, Shree Cement, then there is JK Cement, and then JK Lakshmi Cement, and Dalmia Bharat, JSW Cement. Every company, there is improvement in the EBITDA margin. Now, this is because of the GST 2.0, and that's why that impact has seen over here. So if you see the Ultratech Cement, it has grown by 20%, and the EBITDA growth is 52%. So they got operating leverage because PAT growth is also 74%. EBITDA margin already discussed, it is improved a lot, and PAT margin is also improved with good EPS growth. So overall, this is a quite good quarter for Ultratech Cement. But as compared to Q1, this is a bit softer quarter. So what commentary they have given, that this company is basically pan-India based company, as you all know, but their next focus of growth is they want to expand more into North and West India. So if you look at the current capacity which they have, तो मैंने क्या किया ना, सारी कंपनीज को सेम पैरामीटर से कंपेयर किया है. एंड यू विल कम टू नो एग्जैक्टली. ये कंपैरिजन से आपको हर कंपनी का वो कहाँ पे है वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे डिटेल पता चलेगा, जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ. सो देयर करंट कैपेसिटी इज लाइक 192 मिलियन टन पर एनम. उसको ये लोग 200 मिलियन टन पर एनम पे खत्म करना चाहते हैं FY26 के एंड में. एंड बाय FY29, that they want to increase that capacity to 240. Now this increase in capacity is being done by organic expansion as well as inorganic expansion. For example, they acquired India Cements and Kesoram Industries. So unka amalgamation is already ongoing in the current business. If you look at the volume which they sold in this particular quarter is around 33 million tons. लास्ट क्वार्टर दैट मीन्स Q1 में उन्होंने किया था 37, और एज कम्पेयर टू 37 यहाँ इस क्वार्टर में 33. तो ये भी ट्रेंड आप हर कंपनी में देखोगे कि Q1 में अच्छा खासा वॉल्यूम सेल इन्होंने सोल्ड किया था, बट Q2 में वो थोड़ा सा कम है. बट ओवरऑल Q2 जैसे मैंने बोला सॉफ्ट है. सो टोटल इन लोगों ने 70 मिलियन टन्स वॉल्यूम actually किया है Q2 में. So that is point number two here. So overall growth, volume growth, which is very important in case of all the cement companies. So Ultratech के बारे में वो 13% है. तो ओवरऑल इंडस्ट्री का अगर ग्रोथ देखेंगे वॉल्यूम का, तो वो ऑन एन एवरेज इट इज अराउंड 7%, 7 to 8%. बट दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज ग्रोन at around 13%. So that is phenomenal basically. इतने सारे बड़े बेस पर ये 13% का वॉल्यूम ग्रोथ लाना. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी अच्छा है. आई थिंक इट इज द बेस्ट इन क्लास विच इज 71%. with EBITDA per ton, that this is an important parameter. EBITDA per ton is around 914 rupees. So ये जो टारगेट है बहुत सारी कंपनीज का EBITDA पर टन को ऑलमोस्ट 1400 से 1500 की तरफ लेके जाने का टारगेट है. दैट्स द जर्नी दीज गाइज आर एक्चुअली इन, एंड दैट्स व्हाई दे आर कंसोलिडेटिंग टू रीच दैट गोल. तो इसमें जैसे जब मैंने सीमेंट का लास्ट लास्ट क्वार्टर में कवर किया था सीमेंट सेक्टर, तो आई हैव एक्सप्लेन द वैल्यू चेन ऑल्सो ऑफ द सीमेंट सेक्टर कि ये कैसे बनता है, क्या क्या चीजें होती है. तो 50% ऑफ द कॉस्ट, ऑलमोस्ट 50 to 55% ऑफ द कॉस्ट जो होती है वो पावर कॉस्ट होती है, फ्यूल कॉस्ट होती है, देन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती है सीमेंट को कैरी करने की, राइट. तो वो सब जो कॉस्ट है ये लोग अब जैसे किसी पोर्ट के पास इन लोगों ने सीमेंट की फैक्ट्री लगा दी, या फिर जहाँ पे लाइमस्टोन के रिजर्व्स है वहां पे फैक्ट्री लगा दी है, या फिर दे आर गोइंग क्लोजर टू द मार्केट. दैट्स वाई तो उनका जो है वो डिस्टेंस जो है वो सीमेंट को पहुंचाने का टू द कस्टमर वो भी कम हो रहा है. तो बिकॉज ऑफ दैट आपको यहाँ पे EBITDA मार्जिन आगे जाके बढ़ते हुए नजर आएंगे. एंड these all companies, most of these companies are also focusing on the power इसमें लगता है कोल का पावर. So their dependence on the coal power is they are trying to reduce it, and they are trying to
इम्प्रूव द ग्रीन एनर्जी का मिक्स उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही स्टोरी है ओवरऑल सारी कंपनीज में। सो 13% वॉल्यूम ग्रोथ इन अल्ट्राटेक सीमेंट। बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, बट ओनली थिंग इज दैट रेडी टू मिक्स जो एक मिक्सचर है सीमेंट का, दैट इज गेनिंग ट्रैक्शन एंड अल्ट्राटेक सीमेंट इज currently at the moment their 4% of the revenue is coming from the ready to mix and they want to expand on to that। तो ग्रीन पावर का मिक्स है ऑलमोस्ट लाइक 41.6% यहाँ पे अब तक हो चुका है। तो if I calculate the forward P here, it comes in the range of from base to base case 41 to 45, and on an average in the range growth will come at around 15 to 18% में अगर ये एक्सट्रापोलेट करता हूँ तो, with expected PAT of around 7,500 से 8,500 करोड़। now they can do much better than that because they're saying that second half is much better and stronger than first half, and they also want to grow beyond the industry, expect higher than industry growth जो है। तो ये नंबर जो है ये दिस कुड बी जैसे 18% की तरफ ज्यादा हो सकता है। ठीक है, it could be more than 18 also, so that we need to track, but at the moment this is the best in class growth at higher base। and the statement which they made in the con call has a significant impact in my opinion। they said that they sold this, I mean they sold this volume, that means 13% growth उन्होंने तब किया जब रेन गॉड्स हैव बीन इन फुल फ्यूरी। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्फिडेंस दे आर कैरिंग राइट नाउ इन फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ 2026। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्ट्राटेक सीमेंट। then we'll go to the next company, that is Ambuja Cement। they did almost like half of what Ultratech has done, almost like 9,000 crores, but with the same growth as that of Ultratech. So that is the disappointing angle for me. That is, Ambuja is also growing at the same pace. I would want that Ambuja to grow much better than what Ultratech is doing basically। So Ambuja में यहाँ पे consolidated results है ACC के, सांगी इंडस्ट्री के, then there is Penna, right? and I think Orient is also here। so EBITDA growth is almost 58%, so they got operating leverage again। मैंने जैसे बोला EBITDA margin almost like 4% से यहाँ पे बढ़ गया है। then there is significant amount of PAT growth, यहाँ पे 365% है। but there is a catch with respect to Ambuja Cement, that ये लोग पैट को ना जो टैक्स का रेट है वो एडजस्ट करके ये लोग इन्फ्लेट करते रहते हैं। एंड दिस ट्रेंड यू विल ऑब्जर्व इन ऑल द अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेज व्हाट पैट they will come up, right? So that is one catch here। then if you see the PAT margin, it is also significantly expanded from 6.5 to 25%। it's huge actually jump, and that is because of that पैट इन लोगों ने सॉरी इन लोगों ने टैक्स इस क्वार्टर में दिया ही नहीं है। सो ईपीएस ग्रोथ इज ऑल्सो 266%, विच इज ह्यूज। नाउ इफ यू सी हियर, अंबुजा इज ऑल्सो पैन इंडिया कंपनी है, पैन इंडिया प्रेजेंस है। 107 million tons per annum, that's their current capacity, and they want to end FY26 with 118 million tons per annum, and their long term target is around 155 million tons per annum basically by FY28। so if you see the Ultratech Cement, their capacity is 192 million tons per annum and Ambuja is 107 million tons per annum। so it's almost like half, you can say। volume wise be almost half volume is there। so if you see, Ambuja did almost like 34 million tons per annum in the first half, whereas Ultratech का है 70 million tons per annum। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही स्टोरी है, Q1 में था 18 मिलियन टन्स और Q2 में 16। तो ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है। डबल डिजिट ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग इन द वॉल्यूम ग्रोथ। करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज जस्ट 67% एज कंपेयर टू अल्ट्राटेक विच इज 71%। और एबिटा पर टन इज स्लाइटली बेटर देन द अल्ट्राटेक विच इज अराउंड 1060 रुपीज। सो दैट इज द स्टोरी हियर फॉर अंबुजा सीमेंट। ग्रीन पावर का जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज 33%, which is also lower than what Ultratech is doing, so that is surprising। बट द टारगेट इज टू इंक्रीज दैट ग्रीन पावर बाय टू 60%। तो ये सारा जो खेल है ऑपरेटिंग लेवरेज मे बी जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी आता जाएगा। दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। ठीक है,
तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर रहे हैं, बॉटल नेकिंग जो डी बॉटल नेकिंग कर रहे हैं प्लांट्स में, सो दैट इनका वहाँ पे जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और वहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज भी यहाँ के इनको मिलेगा, राइट। तो डबल डिजिट ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कोई वैल्यूएशन किया नहीं है क्योंकि स्ट्रेट अवे एक तो पैट निकालना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, इट्स वेरिएबल। बट स्ट्रेट अवे दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज बीन बीटन डाउन बाय अल्ट्राटेक, so that is the take on for Q2. Right now, if you remember from last, I think 5 to 6 quarters or more, all the cement companies were in the downturn. They were in the down cycle. Now, from last quarter, ये up cycle में चल पड़ी ये सारी companies because government has started spending on the infrastructure, and that's why this particular sector is, ये उसी के साथ साइकिल में चलता है और वहां से इनका अप साइकिल यहाँ पे सारी कंपनीज में आपको दिखेगा, ठीक है। So now second half is like a boon for this particular companies. Now let's go to the Shree Cement, which is a value based company, not the volume wala company. That's how I want to put it. 4,700 करोड़ का रेवेन्यू किया, 17% का ही ग्रोथ है, बट दे गॉट ऑल्सो ऑपरेटिंग लेवरेज 58% एबिटा ग्रोथ विथ गुड इंक्रीज इन द एबिटा मार्जिन बाय 5%, ह्यूज पैट ग्रोथ अलॉन्ग विद द ईपीएस ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो कंपनी है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट इंडिया में है, तो बोल सकते हैं पैन इंडिया। बट लुक एट द कैपेसिटी ओनली 62.8 मिलियन टन्स पर एनम विच दे वांट टू इंक्रीज टू 69 मिलियन टन्स पर एनम बाय द एंड ऑफ FY26, एंड उसको 80 मिलियन टन्स पर एनम करेंगे बाय FY28। सो अगर हम देखते हैं अल्ट्राटेक का जो कैपेसिटी है वो है ऑलमोस्ट 192 मिलियन टन्स पर एनम। तो मैं FY26 की बात करूंगा तो 200 मिलियन टन्स पर एनम। देन अंबुजा का आता है 118, एंड देन श्री सीमेंट का आता है 70 मिलियन टन्स पर एनम। दैट्स हाउ दिस कंपनीज आर बीइंग स्टैक्ड बेसिकली। और इनका नंबरिंग भी वैसे ही मैंने किया, तो वॉल्यूम इन लोगों ने ऑलमोस्ट 6.9 मिलियन टन्स पर एनम किया है। और इसमें भी वही है, Q1 में वॉल्यूम 9.8 था, अभी ये थोड़ा सा कम हो गया है, ऑलमोस्ट लाइक 6.9, 6.9 और 7.9 समथिंग लाइक दैट। देयर इज सम मिसमैच हियर बट इट इज क्लोज टू दैट पर्टिकुलर नंबर, so you can reconcile this number later. So growing this particular volume growth is like it is slightly better than what industry is growing. So that is not the best point because Ambuja is doing good, Ultratech is doing good. So but this Shri Cement is also saying that H2 is expected to be better. Capacity utilization भी बहुत कम है, which is almost around 55%. EBITDA per ton is almost like 1,000 rupees. Now इनका वही है कि इनको वॉल्यूम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको वैल्यू में इंटरेस्ट है, और इनका एम यही है कि इसको एबिटा पर टन को ये लोग 1300 से 1400 तक लेके जाए। तो दैट इज देयर एम, दैट्स व्हाई दे आर इंक्रीजिंग द प्रीमियम प्रोडक्ट का जो शेयर है वो इंक्रीज कर रहे हैं, एंड दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम 15% टू 21%, विच इज गुड पॉइंट एक्चुअली। सो मे बी if they continue to do that, perhaps they will get more operating leverage here. So green power mix 63%. I think it is the best in the class till जैसे हमने तीनों कंपनीज देखी तो अल्ट्राटेक में था ऑलमोस्ट 41%। यस, सो श्री सीमेंट का बेटर है विच इज 63%, एंड यस दैट्स व्हाट दे आर सेइंग हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। सो ये सब चीजें यहाँ पे चल रही है फॉर श्री सीमेंट। नो वैल्यूएशन एट द मोमेंट बिकॉज if I compare Ultratech with Shree Cement, Ultratech is definitely winning the race here. All right, then let's go to the JK Cement. What is the story here? JK Cement 3,000 करोड़ का सेल किया है Q2 FY26 में विथ 18% ग्रोथ, ऑलमोस्ट सिमिलर टू श्री सीमेंट। 57% का एबिटा ग्रोथ है, 4% का एबिटा मार्जिन इंक्रीज हो गया है विच इज गुड, बट नो ऑपरेटिंग लेवरेज बिकॉज पैट ग्रोथ यहाँ पे है नहीं। तो उसका रीजन है कि अदर इनकम जो था वहां पे अभी इस क्वार्टर में नहीं मिला, इसलिए पैट थोड़ा सा कम हो गया है। सो नो ऑपरेटिंग लेवरेज दे गॉट, दैट इज वन नेगेटिव पॉइंट। एंड ईपीएस ग्रोथ भी ज्यादा कुछ है नहीं। तो सेंट्रल रीजन में ये कंपनी अपना बिजनेस चलाती है, ईस्ट मार्केट, ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ। तो इनका जो स्टोरी है बेसिकली ये है कि अभी जो करंट कैपेसिटी विच इज अराउंड 26.6 मिलियन टन्स पर एनम, उसको ये 50 मिलियन टन्स पर एनम करेंगे, ऑलमोस्ट लाइक डबल करेंगे बाय FY28। अब तक जितनी सारी कंपनीज देखी उसमें इतना एम्बिशियस टारगेट नहीं है एज कंपेयर टू जेके सीमेंट। आई मीन डबल जो करने का जो टारगेट है बेसिकली। इफ यू सी द वॉल्यूम विच दे डिड ऑलमोस्ट लाइक 4.43 मिलियन टन्स इन्होंने वॉल्यूम किया है, लास्ट क्वार्टर में किया था 6, तो ऑलमोस्ट 10.4
मिलियन टन्स इन लोगों ने फर्स्ट हाफ में कर लिया है। ओवरऑल ईयर का टारगेट है 20 मिलियन। सो ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ में अगर 10 मिलियन कर किया है, उसमें Q2 इज सबड्यूड क्वार्टर, तो दे कैन अचीव 20 मिलियन का टारगेट, तो आराम से कर लेंगे इफ सेकेंड हाफ इज बेटर फॉर फॉर दीज कंपनीज। तो ये टारगेट अचीवेबल है, ठीक है। फॉर तो इसके ऊपर अगर मैं निकालता हूँ एक्सपेक्टेड पैट एंड एक्सपेक्टेड सेल्स, तो एक्सपेक्टेड पैट कम्स अराउंड 750 से 850 करोड़ का आ सकता है, विद एक्सपेक्टेड सेल्स ऑफ अराउंड 13,000 से 14,000 करोड़। फॉरवर्ड पी ऑफ अराउंड 40 to 50, तो फॉरवर्ड पी इज 40 to 50 है। ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट लाइक 18% का इस क्वार्टर का ग्रोथ रेट है। तो वैल्यूएशन तो रिच है ही, बट अगेन इफ यू कंपेयर दिस स्मॉल कंपनी विद अल्ट्राटेक विच इज ग्रोइंग एट 20%, and this particular company is growing at 80%, 18%, again Ultratech is winning the race here. That is my take on this particular company. Then go to the next company, that is Dalmia Bharat. इसमें भी क्या है, 11% का ग्रोथ है। यहाँ यहीं पे ये कंपनी अपना गेम लूज करेगी एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, बिकॉज जेके इज ग्रोइंग बेटर देन डालमिया भारत। देन इबिटा ग्रोथ यहाँ पे है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनको मिला है, इबिटा मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इज लो रिलेटिव टू द पियर्स। इफ यू सी द कैपेसिटी, 50 मिलियन टन्स का कैपेसिटी, उसको 62 मिलियन टन्स करेंगे, एंड बाय FY 28 75 मिलियन टन्स इनका करने का इनका टारगेट है। ऑलमोस्ट लाइक 15.8 मिलियन टन्स का वॉल्यूम इन्होंने किया है फर्स्ट हाफ में। सो आई थिंक इट इज बेटर देन व्हाट जेके हैज डन, बट अगेन दिस कंपनी इज सेइंग दैट सेकेंड हाफ इज बेटर देन फर्स्ट हाफ। बट दैट यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट क्या चीज है ना, कि उनका वॉल्यूम ग्रोथ का जो टारगेट है, they're saying that they want to grow at what industry is growing, मतलब 7 से 8% के रेंज में ग्रो करेंगे। तो if every other player is growing their volume beyond industry, then where Dalmia is targeting 7 to 8%, so that is a negative point here. Capacity utilization is similar to Sri Cement, which is 55% only. EBITDA per ton is again similar to the in that range, 1000 rupees. तो ये है स्टोरी फॉर दालमिया भारत। ये इनका भी वही है, रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर ऑलमोस्ट 48% है, एंड दे वांट टू इंक्रीज दैट शेयर बेसिकली कम, जैसे आगे क्वार्टर्स में आएगा तो इनका भी वही है, एबिटा एबिटा पर टन को इंक्रीज करना है। तो दे आर सेइंग दैट दे अचीव्ड 4 डिजिट एबिटा, मतलब 1000 करोड़ का एबिटा ऑलमोस्ट सेकंड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में आया है। सो this particular company has picked the traction, but again this is disappointing that they are growing at an industry level का growth है 7 to 8% का, and as compared to Ultratech or maybe you can say Ambuja or Sri Cement, not Sri Cement but JK Cement, again it is beaten down by all these companies, especially Ultratech Cement. So Ultratech is actually winning the game in this particular quarter. नाउ लेट्स सी JSW का क्या रोल है यहाँ पे। जेएसडब्ल्यू का ऑलमोस्ट लाइक 1400 करोड़ का रेवेन्यू किया है, 17% का ही ग्रोथ है। इसमें भी वही सारे बॉक्सेस टिकता है। ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है विद इंक्रीज इन एबिटा मार्जिन। तो यहाँ पे वो सारी चीजें, सारे बॉक्सेस टिकट है, बट पेस ऑफ द सेल्स ग्रोथ इज 17%। वही स्टोरी यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रही है। तो ये लोग भी अपना जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कैपेसिटी फ्रॉम 21 मिलियन टन्स टू 41 मिलियन टन्स करेंगे, एंड क्लिंकर का कैपेसिटी ऑलमोस्ट 6.4 टू 13 मिलियन टन्स करेंगे। सो वॉल्यूम दैट इज ऑलमोस्ट 3.11 मिलियन टन्स पर एनम का मिलियन टन्स इन लोगों ने वॉल्यूम किया है इन Q2, एंड एबिटा पर टन इज 860, तो वो ये लोअर है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, ठीक है। तो बट दिस कंपनी हैज ऑलरेडी कमीशन सम प्लांट इन संबलपुर, ठीक है। तो ये इससे भी इनका थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा। सो दिस वॉल्यूम यू विल सी इन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन अपकमिंग क्वार्टर्स, एंड strong growth they are anticipating in the second half because of the गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो बढ़ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक कंपनी जो है JSW सीमेंट, इट्स रिलेटिवली न्यू प्लेयर इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर आई वुड से, एंड इट हैज स्टार्टेड पिकिंग अप फ्रॉम द जैसे लॉसेस थे पुराने क्वार्टर्स में, नाउ प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गई कंपनी। सो लेट्स ट्रैक दिस कंपनी इफ दे कैन बीट basically the growth at which Ultratech is growing, basically that's what we want to track.
Now, last two companies, interesting companies because these companies are growing much better than the peers. So, for the first time, we see in this video that JK Lakshmi has this particular company 24% का ग्रोथ आया है. तो अब तक जितने भी कंपनीज देखिए ऑलमोस्ट लाइक 20% का मैक्सिमम ग्रोथ था. नाउ दे हैव बीटन अल्ट्राटेक विथ रिस्पेक्ट टू द पेस ऑफ द सेल्स ग्रोथ इन जो है वो 24% का है जेके लक्ष्मी का, और सागर सीमेंट का 27% का ग्रोथ है. तो इसमें क्या स्टोरी, अगेन जेके लक्ष्मी की अगर बात करता हूं तो मैं, तो एबिटा ग्रोथ इज सॉलिड, एबिटा मार्जिन growth is also solid, and they got operating leverage also, that is perfect. Now, नॉर्थ वेस्ट इन वेस्ट और ईस्ट इंडिया में एक कंपनी है, 16.4 मिलियन टन्स पर एनम का वॉल्यूम किया है, विच दे वांट टू इंक्रीज टू 20 मिलियन टन्स पर एनम. तो इतना ज्यादा एम्बिशियस आई वुड से एक्सपांशन नहीं है बाय, वो भी 27 तक 20 मिलियन टन्स ही करेंगे. 3.3 मिलियन टन्स इन्होंने किया है, एंड देयर ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ इज बेटर देन इंडस्ट्री. सो नॉट एग्जैक्टली, I couldn't get the volume growth, but it is better than the industry. 79% का capacity utilization, which is good, and EBITDA per ton is touching almost 936 rupees per ton. ठीक है, तो ये है almost FY26 का उनका Q2 FY26 का summary. एंड दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग द प्रीमियम सीमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, दे वांट टू इंक्रीज दैट एटलीस्ट 27% बाय FY26 करेंगे. तो ये भी ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर स्टोरी फॉलो करते हैं श्री सीमेंट के जैसा. सो दिस इज वैल्यू प्लस वॉल्यूम वाला गेम है. समहाउ दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कंट्रोल द कॉस्ट सो दैट उनको ऑपरेटिंग लेवरेज आगे जाके मिलेगा. सो कॉस्ट सेविंग वगैरह ये सब ठीक है, बट एज लॉन्ग एज द कंपनी इज डूइंग द good pace of sales growth, I don't mind they do the cost saving like things in order to increase the operating leverage. That is also fine. uh, Now, if you compare the forward P आता है इनका 28 to 30 के बीच में आता है, क्योंकि इसका अगर मैं एक्सपेक्टेड सेल्स कैलकुलेट करता हूं तो ऑलमोस्ट लाइक इन माय कैलकुलेशंस, आई मे बी रॉन्ग, 7,000 से 7,200 करोड़ का आता है. एक्सपेक्टेड पैट कम्स अराउंड 360 to 380 करोड़ के बीच में आता है. So that's how you get a range of forward P which is 28 to 30 with a growth rate of 18 to 20%. So reasonably valued, I would say, not overvalued, because इसका growth भी है ना, growth is better than Ultratech. So that is point to be noted here. So I would track this company very closely. So one is that JSW Cement, then this other company JK Lakshmi. ठीक है, ये दो कंपनीज टू ट्रैक. देन लास्ट कंपनी इज दिस सागर सीमेंट. तो इसका भी क्या है ना स्टोरी, कि ये ऑलमोस्ट लाइक 602 करोड़ का सेल किया है. 27% का ग्रोथ इन लोगों ने लिया है Q2 FY26 में, विथ गुड ग्रोथ इन एबिटा मार्जिन. ऑलमोस्ट लाइक 5% का ग्रोथ है यहाँ पे. एबिटा ग्रोथ इज 155%, बट देर आर लॉसेस इन पैट, एंड दैट्स व्हाई इन ईपीएस. तो वो एक निगेटिव एंगल है. तो दिस कंपनी को ट्रैक करना है टिल इट गेट्स पैट पॉजिटिव बेसिकली. मे बी दैट इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट हियर. सदर्न स्टेट में बेसिकली कंपनी है, देन एमपी में भी है, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा. दीज आर द स्टेट्स वेयर दिस कंपनी ऑपरेट्स. ऑलमोस्ट 10.5 मिलियन टन्स पर एनम का रेवेन्यू कैपेसिटी है, एंड दे वांट टू इंक्रीज इट टू 12 मिलियन टन्स पर एनम. तो ज्यादा कुछ एम्बिशियस टारगेट यहाँ पे है नहीं, वॉल्यूम भी ज्यादा कुछ है नहीं, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 1.36 मिलियन टन इन्होंने Q2 में किया है. तो ऑलमोस्ट लाइक 2.79 मिलियन टन टोटल वॉल्यूम किया है. बट अभी 2.79 से दे वांट टू डू 6 मिलियन टन्स बाय FY26. सो ये है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे. एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बहुत कम है, विच इज 53%. सो एंड एबिटा पर टन तो बहुत ही ज्यादा कम है. तो यहाँ पे ना रनवे बहुत अच्छा है कंपनी के लिए. एंड इफ दे एग्जीक्यूट वेल ना, देन दिस कुड गेट अ मोर ट्रैक्शन देन एनी अदर कंपनी इन द सीमेंट सेक्टर. सो दैट इज माई टेक ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी. बट यहाँ पे एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि उन लोगों ने ऑलमोस्ट लाइक 2.8 मिलियन टन वॉल्यूम किया है फर्स्ट हाफ में, और इनको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक और 3-4 मिलियन करना है इन सेकेंड हाफ. सो सेकेंड हाफ हैज टू बी द बेस्ट, बिकॉज इनको यहाँ पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 17% का मिला है. तो अब तक जितनी भी कंपनीज देखी हमने उसमें मैक्सिमम अल्ट्राटेक का था 13%,
whereas these guys are getting a volume growth of around 17%. So that is the company to track. आंध्रा सीमेंट को इन लोगों ने एक्वायर किया, उसका अमलगमेशन चल रहा है यहाँ पे। एंड ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, वॉल्यूम ग्रोथ जो है 17%। इफ दे डू मोर देन 17% इन सेकेंड हाफ, देन परहैप्स दे कैन रीच दिस 6 मिलियन टन्स का जो गाइडेंस है वो इजीली रीच कर पाएंगे। यू कैन कैलकुलेट द expected sales and expected PAT based upon that. This is for you to calculate and then understand where the Sagar Cement is being placed in the all these companies। यहाँ पे कहाँ आप उसको रखना चाहते हो, क्योंकि अगर ग्रोथ है तो आपको पी भी ज्यादा देना पड़ेगा। सो दैट इज माय टेक ऑन दिस लास्ट कंपनी। सो सागर सीमेंट इज टू बी ट्रैक्ड वेरी क्लोजली बिकॉज दे हैव गॉट गुड रनवे एंड दे आर पिकिंग अप एंड मे बी बेस्ट इन द वॉल्यूम ग्रोथ, लाइक 17% का वॉल्यूम ग्रोथ मिला है, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द सबड्यूड Q2 क्वार्टर विच एवरी कंपनी इज सेइंग। then JK Lakshmi Cement is to be tracked very closely, right? And JSW is also is to be tracked very closely. So three companies which are smaller companies, इनको अच्छे से track करना जरूरी है। And then after your analysis you can take a call on this company, uh, these companies. But overall, if you look at all these companies, again this Ultratech is beating each and every company, right? So this is all about the companies in the cement sector. I think I have summarized each and every point here. If you want to understand or more on this, you can go through this video again, pause this video to understand the metrics, and then you will come to know कौन कहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है। तो that's it for today's video, and we'll continue the Q2 FY26 earning season with some more analysis coming up tomorrow. And maybe we'll try to do cable and wire का जो पूरा segment है उसको analyze कर लेते हैं। And then KP Groups का भी result आ चुका है। तो I was listening to their con call, KP Green Energy वाला जो आया था, तो con call was good. Again people are asking कि ये stock चल क्यों नहीं रहा है। So it's very I would say immature question to ask that in spite of company is doing good, स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स एंड वो सब चीजें प्ले करती है। बट एज लॉन्ग एज कंपनी इज डूइंग गुड एंड यू अंडरस्टैंड द बिजनेस, तो आप उसमें बने रहो, उसमें कोई इशू नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। और दिस इज द टाइम व्हेन आपका जब रिजल्ट आता जाता है, कंपनी कोई कंपनी अच्छा कर रही है, तो आप उसको उसमें और उसमें आप उस बिजनेस को और अच्छे से देख सकते हो, उसमें और उसको उसमें शेयर इंक्रीज कर सकते हो, राइट? दैट इज द टाइम, बिकॉज एट द सेम प्राइस और लोअर प्राइस यू आर गेटिंग बहुत अच्छा बिजनेस आपको मिल रहा है, जो ग्रोइंग बिजनेस है और जिसका फ्यूचर, जो स्केलेबिलिटी है, जो मल्टी बैगर किसी चीज को बनाता है, दैट इज द स्केलेबिलिटी, वो अच्छा है तो आप उसमें बने रह सकते हो। बट वी मिस दैट अपॉर्चुनिटी, और जब वो ऊपर भाग जाता है, जो कोई भी स्टॉक, जब उसका वैल्यू बढ़ जाता है, देन वी थिंक दैट अरे इसमें तो चांस था मुझे पोजीशन बनाने का, बट आई कुडंट डू इट बिकॉज आई वॉज नॉट ट्रैकिंग द बिजनेस प्रॉपरली एंड आई वॉज वरिड कि ये चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो बिकॉज हम लोग क्या सोचते हैं ना कि हर बार कि ये चल नहीं रहा है तो इसमें कुछ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, समथिंग लाइक दैट। या फिर वी ट्रैक द जो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है उनका वो कहाँ क्या खरीद रहे हैं, वो सब ट्रैक करते रहते हैं। तो बेस्ट थिंग इज दैट वी शुड गिव मोर वेटेज टू आवर गट and our own analysis than any others, right? So let's end this video here, and I'll see you in the next video. So thank you so much for watching, and do subscribe and share with your friends and discuss. So thank you so much guys, I'll see you in the next video.